अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? पिरामिड पढ़ा था ना? सरफेस जी। एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. ओके. So in today's class we will start this exercise that is 12a, and I hopefully you will remember. You also remember the formula, like how you will find the volume of pyramid and what how you will find the volume of cone. So question number one: OABC is a triangular pyramid with a base area of 15 centimeter and a हम्म। height of 4 centimeter. Okay, height and base area is already given to you. Find the volume of the triangular pyramid. This is pyramid. Okay, this is not prism. Okay, prism में आपका ये apex नहीं होगा. This is apex. Okay, जहाँ पे आपके सारे corners के line meet up होते हैं, so that is known as apex. अच्छा। So 15, 1/3 of 15 into 4। yes, this is actually the volume of prism. If you want to find the volume of prism, then you will multiply these two thingy, the base area and height. But if you want to find the volume of pyramid, so you will divide it by 3. Good. Question number 2: OABCDEF is a hexagonal pyramid with a base area of 23 centimeter square and a height of 6 centimeter. Find the volume of the pyramid. ये भी इसी तरह आपने करना है, 1 डिवाइड बाई 3. Hexagonal pyramid with a base area of 23 and a height of 6। 1/3 of 23 into 6। अच्छा, आप आंसर देख लो, क्या आंसर हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है. 69 आंसर है कि नहीं? सेंटीमीटर क्यूब. 49, सॉरी. 46। 46, yes. 3 times 2 is 6, 3, 2 times 2 is 4, 46 centimeter cube. Question number 3: OZYZ OXYZ is a pyramid whose base is a right angle triangle where XY is equal to 7 centimeter and YZ is equal to 4 centimeter. Okay. Given that the height of pyramid is given to 35 meter, find its volume. So that will be equal to वही 1/3 इंटू हमारी बेस एरिया 7 into 4 होगा ना। 1/2 7 into 4। 7 into 4 करेक्ट। होगा. बेस एरिया बेस आपका क्या है, कौन सा शेप है? 3 ट्राइंगुलर. का है राइट एंगल ट्राइंगल। OXYZ is a pyramid whose base is a right angle triangle. Sticker of 1/2 7 into 4। एक्चुअली आपका इसका जो होगा बेस बेस आपका क्या होगा, 4 है एंड हाइट इज 7. दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपने हाइट लेना है दैट इज परपेंडिकुलर टू बेस. तो यहाँ पे आपका 7 परपेंडिकुलर टू 4 है, सो दैट्स वाई यू कैन टेक दीज टू नंबर. हाइट ये भी हाइट 5 है। यस एग्जैक्टली. नहीं, यहाँ पे लाइक बेस एरिया के लिए वो तो आपका हाइट होगा 5 है, लेकिन बेस एरिया के लिए ये आपका 1/2 टाइम्स 4 टाइम्स 7 हो जाएगा. टाइम 4 नहीं करेंगे वैसे जाए 4 into 7। यस, दिस इज द बेस एरिया. इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. 2 आ जाएगा. 23.3 आएगा। यस, 23.3333. क्वेश्चन नंबर 4: बी पी इज अ क्यू रेक्टेंगुलर और एस
is a rectangular pyramid whose PQ is 10 centimeter and QR is 6 centimeter. Given that the volume of the pyramid is 100 centimeter cube, find its height VO. We need to find this height. अच्छा, this is 10, this is 6, so rectangular हैं, तो फार्मूला आपने अप्लाई करना है. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज़ 100, सो वॉल्यूम इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब. दैट शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स h टाइम्स क्या होगा? H into base area. Like this? 1060. Yes. ऐसे भी कर रहे हैं. H equals to 100. तो h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. अच्छा, next question. A pyramid with a triangular base has a volume इतना. If the base and the height of the triangular base are इतना, find the height of the pyramid. Okay, base and height of a the pyramid with a triangular base has a volume of 50 centimeters square. If the base and the height of the triangular base are 5 and 8 centimeters respectively, find the height of the pyramid. easy है, आप कर लोगे. Question number 6. तो 5 into 8 करेंगे और फिर वही करेंगे जो पिछला क्वेश्चन है. Yes, ये easy है. Okay, या आप खुद ही कर लो. Question number 6. The volume of the square pyramid with a height of itna is itna. Find the length of its square base. The volume of a square pyramid with a height of 12 inches is 100. Find the length of its square base. 1 by 100 equals to 1 by 3 into BA, base area of its square base. B तो होगा pyramid है ना, into BA into height. ऐसे भी कर ले, into BA कर जब आपने पहले height लिख दिया तो सही है. 100 equals to 1 by 3 into 12 into base. So हम ऐसे नहीं कर सकते. 3 into 12. 3 into 12. 3 into 12 which होगा 36. नहीं, सिंपल है. 12 into base equals to 300 into base equals to 300. Correct? Yes. Equals to 300. 12 So into base is equal to 300. 300 divided by 12. Okay. अच्छा, आपने बेस एरिया नहीं लेना? फिर आंसर आ गया. बेस एरिया ही तो ले रहा हूँ. 25. बेस एरिया आपके पास क्या आ रहा है? 25. अच्छा, बी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, बी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी, दिस अल्फाबेट बी. मैं तो बी एरिया है, आपने तो बेस किया. अच्छा, दिस इज बेस एरिया. अच्छा, तो बेस एरिया आपका क्या आ गया था? 25 आ गया था. अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस. लेंथ हाइट होगी तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस. स्क्वायर पिरामिड, फाइंड द लेंथ. 25 डिवाइड बाय 4 करके नहीं आ जाएगा लेंथ? क्यों 4? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है? तो सबकी लेंथ इक्वल होगी. तो लेंथ इक्वल होगी, तो ये आपके इस तरह आ जाएगा कि एल स्क्वायर आ जाएगा. बिकॉज द बेस एरिया इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बट आई नीड एल, सो यू विल टेक स्क्वायर रूट.
So your L will be equal to 5. 5. Okay, question number 7. Read this question and solve this question. OWXY is a rectangular pyramid with WX equals to 66 and XY equals to 32. Given that slant heights OA and OB of pyramids are 56 and 63 respectively, draw its net and hence find the total surface area. सरफेस एरिया निकालना है और हमारी स्लांट हाइट्स है 56 और 63. WX 66, XY 32. Find the total surface area. हमें इन्होंने दी है 3 साइड्स ना. Yes. सर 3 साइड दिए. अच्छा, फिर अगर हम 63 माइनस 56 करेंगे तो हमारा ओजी आ जाएगा. नहीं, अच्छा, पहले तो हम तीसरी स्लैंट हाइट निकालेंगे ना. स्लैंट हाइट आपको गिवन है. ओके, आपने वो परपेंडिकुलर हाइट फाइंड 2 गिवन है, हमें तीसरी नहीं फाइंड करनी. क्या तीसरी नहीं फाइंड करनी? तीसरी स्लैंट हाइट फाइंड नहीं करनी, 3 साइड है पिक्चर पे. फाइंड टोटल सरफेस एरिया. आपका परपेंडिकुलर हाइट सेम ही आएगा. अगर आप 56 वाला साइड ले लो या 63 वाला साइड ले लो, आपका सेम आएगा, हाइट सेम आएगा. दोनों से आप दोनों से ट्राई कर लो, सेम आना चाहिए. 66 into 56. Yes, Anna. Surface area equals to base area into height, correct? 1/3 of base area into height. Yes, लेकिन वहाँ पे तो बेस एरिया आपके पास आ जाएगा. वो तो आपका यहाँ पे बेस क्या है, आपका रेक्टेंगल है. आप 32 को मल्टीप्लाई कर लो 66 के साथ, आपके पास बेस एरिया आ जाएगा. बट यहाँ पे प्रॉब्लम हाइट का हो रहा है. You need to find the height through using Pythagoras theorem. स्लांट हाइट दी है उन्होंने हमें. स्लांट हाइट उन्होंने दी है आपको, लेकिन वॉल्यूम ऑफ इन्होंने क्या कहा है? अच्छा, उन्होंने सरफेस एरिया का फाइंड करना है. ओके, क्या करना है? वही तो मैं कह रहा था. 1/3 of slant height into base. नहीं, 1/3 आप क्यों या कर बस रहे हो? 1/3 तो हम उसमें लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं. यहाँ पे जरूरी नहीं है. अच्छा, तो फिर इसमें बस बेस इनटू हाइट. नहीं, बेस इनटू हाइट नहीं करना. यहाँ पे जितने भी सरफेसेस हैं उनकी एरियाज आपने फाइंड करना है. टोटल करो बेस इनटू स्लांट हाइट प्लस बेस इनटू स्लांट हाइट प्लस बेस इनटू स्लांट हाइट. यस, सो दिस विल बी ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. आपका हाइट क्या है? 63 टाइम्स बेस क्या हो जाएगा? 32. अच्छा, इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का सरफेस आपका इस साइड पे भी है, इस साइड पे. सही है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. या आप इस तरह कर लो कि इसको 2 टाइम्स ऐड कर लो, प्लस 1/2 टाइम्स 63 टाइम्स 32 लिख लो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम आता है. अच्छा, अब ये साइड ले लेंगे. ये सरफेस आपका क्या जगह, ये ट्राइंगल का एरिया आप फाइंड कर लो. दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2. ये ट्राइंगुलर है तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स 56 टाइम्स 66. इसका भी उस ऑपोजिट साइड पे सेम सरफेस एरिया है, तो वो उसको भी, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास दोनों से आ जाएंगे. उसके बाद बेस एरिया हमेशा 4 होती है साइड्स 4 होती है, लेकिन यहाँ पे साइड्स आपके डिफरेंट हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है. अगर स्क्वायर होता तो साइड्स हमेशा 4 होती हैं. यस, साइड हमेशा 4 होती हैं. तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका बेस एरिया क्या हो जाएगा? 66 टाइम्स 32 हो जाएगा. सो इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया. ओके,
ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा इस टू के साथ, ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा इस टू के साथ, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. Glass paper weight in the shape of a solid cylinder is the height of the length 6, the height of 7. Given that the density of the glass is 3.1 gram centimeters per cube, find the mass of the four identical paper weight. Glass paper is in the shape of a solid pyramid with a square base of length 6 centimeters and a height of 7 centimeters. Given the density of the glass is 3.1 gram centimeters cube, find the mass of the four identical paper weights. इस साइंस का क्वेश्चन नहीं है. मैथ्स कैसे निकालते हैं? साइंस का क्वेश्चन है. मैथ्स कैसे निकालते हैं? Okay, a glass paperweight is in the shape of the solid pyramid with a square base of length itna and a height itna. Given that the density is given to you, so density का फार्मूला तो आपको याद होगा hopefully. क्या होता है density का फार्मूला? पानी. पता नहीं. क्यों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते आप? अच्छा, यूनिट से बता दो. डेंसिटी का यूनिट आपको गिवन है, सो यूनिट से आप फाइंड कर लो फार्मूला. एक्चुअली डेंसिटी का जो फार्मूला है दैट इज, यहाँ पे यूनिट देख लो डेंसिटी का. अगर आपको कोई फार्मूला पता ना हो तो आप यूनिट से फाइंड कर लिया करो. यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो इट मीन्स कि डेंसिटी का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो वी नीड टू फाइंड मास. सो डेंसिटी इज गिवन टू मी दैट इज 3.1, बट यहाँ पे मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है. सो वॉल्यूम में क्या है, यहाँ पे आपका स्क्वायर बेस है तो इट मीन्स ऑफ लेंथ इतना, तो स्क्वायर बेस है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज pyramid, ओके, नॉट प्रिज्म. सो दैट्स व्हाई आई विल मल्टीप्लाई बाय 1/3 टाइम्स हाइट कितना है दैट इज 7 टाइम्स बेस एरिया क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 6. 1 लेंथ 6 है तो 6 टाइम्स 6 हो जाएगा बिकॉज दिस इज बेस हैविंग सेम लेंथ. सो ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 12 टाइम्स 7, 7 टाइम्स 2 इज 14, 7 टाइम्स 8, 84 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा. अब आपने मास को फाइंड करना है तो मास के लिए क्या हो जाएगा 84 टाइम्स 3.1 हो जाएगा. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द मास दैट्स विल बी इन ग्राम. ओके, यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी आपने जी लिखना है, किलोग्राम नहीं लिखना. अच्छा, तो डिवाइड बाय 4 करना है आपने या मल्टीप्लाई बाय 4 करना है? आपने मैथ्स एक भी वेट करने का था 4 का. मैंने कहा कि फाइंड द मास ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट. 1041.6 हो जाएगा. आंसर क्या है एंड पे? 1041.6. तो ये मास ऑफ 1 पेपर का आ गया ना, तो अब 4 आइडेंटिकल का क्या हो जाएगा, तो टाइम्स 4 करने हैं आपने या 4 टाइम्स इसको ऐड कर लो. सो यू विल गेट 1041.6 आ जाएगा. या यू कैन राइट इट लाइक 1.0416 किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 9. A solid pentagonal pyramid has a mass of etna. It is made of a material with a density of etna. Given that the base area of the pyramid is etna, find its height. Pentagonal means के 5 sides हैं.
pyramid is 30 centimeters, find its height. Density equals to mass over volume. So इससे आप फाइंड करो, you will get the height. कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में? हाँ 2.77 ही होगा। अच्छा, आपने हाइट आंसर फाइंड कर लिया इसका? हाइट 2.77 ही होगा। अच्छा नहीं, इंटू 3 भी करना है। इंटू 3 8.33 या 8.33। ऐसा कुछ है। फाइनल आंसर भी 8.33 है। ओके हाइट का जी, because 83.333 is 1/3 of base into height. यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, So therefore VABCD is a pyramid 8.3. with a pyramid with a rectangular Base has a volume of 50 centimeters cube with base and the height of a triangular base. ये तुमने कर नहीं लिया था? अच्छा हम 10 पे है। VABC is pyramid with a rectangular base of size 15/9. Given that the slant height is 16, find its height and volume. VABC. Sure. Hello. जी VABC हाइट निकाली था पर जी इसकी हाइट VC है। इसका हाइट इसकी हाइट क्या है? ये इसका हाइट होगा। हाइट खुद ही बना देते हैं। और 16 स्लैंट हाइट है। जैसे स्लैंट हाइट इक्वल्स टू हाइट इनटू इनटू या डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा? आपके पास क्या आंसर आ रहा है? वो जी हाइपोटेन्यूज तो नहीं है। आपकी आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही है मुझे। अच्छा ओके, अब मैं कह रहा हूँ ये हाइपोटेन्यूज नहीं है ना, हाइपोटेन्यूज 16 है। दिस इज हाइट। अच्छा हमारे 14 है, हाइट 14.1। सो इसको परपेंडिकुलर कर लेता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अच्छा तो 6 ये 14 हो जाएगा। 14.1 14.13, yes. So this will be 14.13, which is equal to 14.
Okay, so your height is 14.3. That should be the answer of this part. वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है 1/3 टाइम्स 14.13 times base area, that is 15 times 9. Okay, so this will be the volume, and that will be the answer of part 2. Okay, question number 11. BQRS is a pyramid with a rectangular base of 10 by 8. Given the volume of the pyramid is 180. Find its height and total surface area. अब हमने हाइट निकाली, वॉल्यूम दी है पहले तो 10 into 8 हमारी 10 into 8 divided by 2 हमारा बेस एरिया जाएगा which is 40. बेस एरिया 40. डिवाइड बाय 2 क्यूब करना है आपको सर यू कैन ट्राई ऐसे स्क्वायर बेस है 80 हो गया. ए, 1/3 equals to 180. इससे क्या आता है? Which means 80 into height. 18 into set yard by 6.75. 6.75 is your height. अच्छा, this is the answer of first part. So this height is 6.75. अब surface area के लिए क्या करना है? Slant height. Slant height को आपने find करना है. How you will Slant find? height. How G. you will find the slant height? Pythagoras. Good, Pythagoras theorem. तो दोनों का slant height same होगा या different होगा? Same. क्यों? Different है. Different होगा, I think. क्योंकि different sides हैं. अच्छा. तो ये क्या हो जाएगा? ये we need to find this slant height. तो ये क्या हो जाएगा? ये distance कितना है? Half of 10. That is 5. So your hypotenuse square, yes, slant height will be equal to 5 square Height plus equals 6.75 square square root. तो ये आपके पास slant height आ जाएगा 33.75 आ जाएगा. This will be the 33.75. yes. आपके पास क्या आ रहा है? कुछ नहीं. क्योंकि फिर एक लेंथ कैसे हो सकता है कि एक लेंथ इतनी बड़ी और बाकी लेंथ छोटी है. इधर 8 आ रहा है 8 पॉइंट कुछ, क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 6.75 स्क्वायर अंडर रूट. ओके, वेट मैंने मल्टीप्लाई किया था. 8.4 आ रहा है. 8.4 सेंटीमीटर. अच्छा, अब ये हाइट क्या होगा? दिस इज आल्सो स्लैंट हाइट. अब ये हाइट ये भी आपने इसी तरह फाइंड करना है, बट यहाँ पे 5 स्क्वायर नहीं होगा. यहाँ पे आपका एक सेकंड, स्लैंट हाइट हमारी ये नहीं है वीपी. नहीं, वीपी नहीं होगा. वीपी तो आपका स्लैंट हाइट नहीं है, वो तो आपका कुछ इस तरह रेक्टेंगल शेप है. हाइट, स्लैंट हाइट इज परपेंडिकुलर टू दिस बेस. सो दिस इज योर स्लैंट हाइट. दिस इज परपेंडिकुलर टू बेस. ओके, ये आपने परपेंडिकुलर लाइन इस तरह ड्रॉ करना है. सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपका 6.75 हाइट तो आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस ये आपका डिफरेंट होगा. नाउ दिस टाइम दिस विल बी डिफरेंट एंड दैट इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना होगा? 10 - 8 होगा. 10 - 8 होगा. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 - 8 = 5. 10 - 8 -
10 - 8 क्यों करना है आपने, 10 को क्यों काउंट करना है आपने यहाँ पे? एक्चुअली ये लेंथ कितना तो है? क्या ये लेंथ 8 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। सो दिस इज़ 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट दी slant height, second slant height 7.84 आ रहा है। जी। अब सरफेस एरिया के लिए क्या करना है? बेस एरिया बेस इंटू स्लैंट हाइट। अच्छा, बेस इंटू स्लैंट हाइट बस? क्योंकि हमारे पास 2 बार है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अच्छा, तो ये आप वैसे हमारे पहली स्लैंट हाइट क्या थी? अच्छा, स्लैंट हाइट आपकी 8.4 8.4 थी, बट आप यहाँ पे भी एक सिली मिस्टेक कर रहे हो। 8 into 8.4 into 2। या डिवाइड बाय 2, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? डिवाइड बाय 2। अगर फिर कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि डिवाइड बाय या 2 कैंसल आउट हो into जाते हैं, 2 लेकिन वो अलग बात है। आपने फार्मूला को प्रॉपरली लिखना है। मगर 8.4 into 8 plus 7.84 into 10 into 2 divided by 2 प्लस और तो नहीं है। क्यों 4 नहीं? साइड्स हैं, स्क्वायर बेस्ड है। 1 2 3 4 साइड्स हो गए। नीचे साइड नहीं लेना, नीचे भी आपको नजर आ रहे हैं या वो नजर नहीं आ रहा आपको? हमारी 4 साइड्स पूरी हो गई हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 4 साइड्स होंगे। अगर आपका इस तरह का शेप होगा तो, और इसका सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, तो इस साइड का भी लेना है आपने, इस साइड का भी लेना है, 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 नीचे बेस का भी लेना है, और ऊपर ये टॉप सरफेस भी लेना है। सारे सरफेस एरिया आपने लेने हैं। यहाँ पे तो मेरे पास टॉप का नहीं है, टॉप का तो मेरे पास कुछ भी नहीं है एरिया। नीचे मेरे पास है, तो नीचे का भी आपने लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 4 साइड्स होंगे। आपने इधर 5 ली हुई हैं तो 5, या तो 5 लेने हैं मैंने। यहाँ पे एक रहता है, और इधर 4 है। कहाँ पे मैंने 5 नहीं है? इधर ये पेंटागन तो नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये पेंटागन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये सारे सरफेस मैंने ले लिए हैं जो 4 हैं। नीचे मेरे पास सरफेस रहते हैं, यहाँ से देख लो इसको, यहाँ से देख लो, एक सरफेस नीचे भी हैं। ये सारे साइड्स के टोटल सरफेस एरिया मींस के जितने भी सरफेसेस हैं वो सारे आपने लेने हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 times 8 हो जाएगा। Got it? यस। Okay, it's back now. 3.6 Okay. plus Leave it. 3.6. Okay, so the next chapter, the next exercise is related to prism and cylinder. Okay. So we will find the area or volume of all these 3D shape. Okay, 3D shapes are given to you. Okay, and the question will be find the area, find the volume, or find the surface area. Okay, तो वॉल्यूम को आपने किस तरह फाइंड करना है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो. यू नो हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट? If this triangle is given to you, what you will do, you will need to find the area of this triangle. That will be equal to 1 divided by 2 base times height. Okay, so ये आपके पास एरिया आ जाएगा. सो वॉल्यूम के लिए क्या करना है, आपने वॉल्यूम के लिए आपने इस तरह करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. उसके बाद दिस हाइट विल बी गिवन टू यू. ओके, सो देन यू विल मल्टीप्लाई दैट एरिया बाय h, सो यू विल गेट द वॉल्यूम. सो आपने ये एरिया फाइंड करना है. एरिया को फिर आपने इस h या लेंथ, दिस लेंथ, इस लेंथ के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है. सो यू विल गेट द वॉल्यूम. इट इज़ लाइक यू विल फाइंड दिस एरिया, और इस एरिया को आपने एक्सटेंड करना है इस डायरेक्शन में अप टू दिस. इस एरिया को आपने एक्सटेंड करना है अप टू दिस. कितना? दिस लेंथ विच इज़ गिवन टू यू. ओके, तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है. और मैंने आपको पहले भी इन फ्यू क्लास पहले मैंने आपको ये बताया था
कि हमारे पास क्या होता है, द एरिया, द यूनिट फॉर एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ओके। लाइक यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आएगा, तो जब स्क्वायर आ जाए तो आपने यही समझना है कि दिस इज़ एरिया। लेकिन वॉल्यूम आपका क्यूब में होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ओके। तो मीटर स्क्वायर टाइम्स दिस लेंथ एंड द यूनिट ऑफ दिस लेंथ इज मीटर, सो मीटर स्क्वायर टाइम्स मीटर I विल don't get any of this. Stop. Wait. आप क्या कर रही थी अभी तक जब मैं टीच कर रहा था? Trying to understand, which I can't. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और इधर उधर देख रही थी। Okay, proof. प्रूफ आई हैव। Okay. या एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होगा, ओके, उसका स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। बट वॉल्यूम में हम क्यूब लेते हैं, मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, मिलीमीटर क्यूब होगा। तो दिस इज स्क्वायर। सो एरिया के साथ जब भी आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द वॉल्यूम, ओके। ये आपने जहन में रखना है। किस तरह वॉल्यूम आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में होगा, ओके। मैंने अभी आपसे कहा कि आपका एरिया स्क्वायर में आएगा। सो एरिया इज इन मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इन मीटर, यहाँ पे देख लो मीटर। सो इन मल्टीप्लीकेशन द पावर शुड बी एडेड। सो इस m का यूनिट क्या है, 2 है, सॉरी पावर क्या है, 2। द पावर ऑफ दिस m इज 1। सो इन मल्टीप्लीकेशन द पावर शुड बी एडेड। सो m आपने लिखना है 2 + 1, दैट्स विल बी इक्वल टू 3। सो क्यूब आ गया यहाँ पे। सो दिस इज वॉल्यूम। सो जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, आपने फ्रंट साइड का एरिया फाइंड करना है, उसको फिर आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है बाय लेंथ L। अच्छा, सरफेस एरिया के लिए क्या करना है वो तो आपको आता होगा। सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, ये सरफेस है तो इसका अपने एरिया फाइंड करना है, ओके। सरफेस एरिया, ये इसको, इस एरिया को फिर आपने प्लस करना है इस सरफेस एरिया के साथ, जो कि आपका रेक्टेंगल है, ओके। इस सरफेस का आपने एरिया किस तरह फाइंड करना है, आपने ये लेंथ लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस लेंथ के साथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल में हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 2 साइड्स। अच्छा, इसके बाद कौन कौन से 2 सरफेसेस हो गए हैं आपका? एक Wait, सरफेस, sir, is this square? Is square या भी? नहीं, ये A2 है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट में है। दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2। 2 एरियाज हो गए सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा, दैट इज दिस एरिया प्लस दिस एरिया, बाकी रहते हैं उसको करते हैं। एक आपका ये है, इस साइड से आप देख लो, इस साइड से देख लो तो ये सरफेस है आपका, Okay. तो वो भी रेक्टेंगल है। ये लेंथ लेना है और ये लेंथ लेना है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वो एरिया आ जाएगा। तो वो एरिया आपने लेना है, दैट इज़ A3। अच्छा, 3 सरफेस हो गए। अब यहाँ पे देख लो तो एक ये सरफेस रहता है, उस साइड से देख लो तो आपका वो A4 हो जाएगा। और A4 का आपने किस तरह फाइंड करना है, वो आपका ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस टाइम्स h हो जाएगा। अच्छा, और कोई रहता है, ये बेस एरिया रहता है नीचे, ये भी हो गया, वो साइड भी हो गया, वो साइड भी हो गया, वो साइड भी हो गया, ये वाला साइड रहता है ये नीचे। तो ये आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपने फाइंड करना है, वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो इन सारे एरियाज को आप ऐड कर लो, यू विल गेट दिस एरिया सरफेस। का स्क्वायर, एरिया का क्यूब है ना? नहीं, एरिया आपका हमेशा स्क्वायर में आएगा। लाइक इसका जो यूनिट नहीं, होगा, I'm talking about this and this. I'm talking about these. नहीं। Area square and area cube. This is not area square. This is A2, A1, A2, A3, A4, A5 स्मॉल सबस्क्रिप्ट में। अगर A स्क्वायर मीन्स के A स्क्वायर आपका इस तरह होगा, ऊपर होगा, A क्यूब ऊपर होगा 3, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे लिखे है सबस्क्रिप्ट में। Okay. तो सरफेस एरिया जब भी आपने फाइंड करना है, सरफेस एरिया, तो सारे जितने भी सरफेसेस हैं, बॉडी के जितने भी सरफेसेस हैं, उनके एरियाज को आपने फाइंड करना है और ऐड करना है।
यहाँ पे देख लो, इसका सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, तो ये सरफेस एरिया आप फाइंड कर लोगे विच इज़ 1/2 बेस टाइम्स एच। ये सरफेस फाइंड कर लोगे विच इज ऑल्सो 1/2 बेस टाइम्स एच। 2 एरियाज हो गए। फिर आपका ये एक फ्रंट साइड पे ये एरिया है जो कि रेक्टेंगल है आपका, ये एरिया फाइंड कर लोगे। फिर उस साइड पे ओके वो वाला एरिया फाइंड कर लोगे, वो उस साइड पे जो है। ओके, और अब नीचे रहता है तो नीचे आपने फाइंड करना है ये वाला, दिस इज आल्सो रेक्टेंगल। इसी तरह ट्रेपीजियम का क्या करना है, ट्रेपीजियम का आपने ये फार्मूले पुट करने 1/2 h इंटू a प्लस b हो जाएगा, तो वो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह ये उसके बैक साइड पे भी इसी तरह का एरिया है, वो भी आपने उसी तरह फाइंड करना है। 2 एरियाज हो गए। अब ऊपर का एरिया रहता है द टॉप वन, ये आपका रेक्टेंगल है। ओके, इस ये एरिया फाइंड करना है, फिर आपने ये एरिया फाइंड करना है। ओके, एक और रहता है विच इज़ दिस वन, ये वाला आपने फाइंड करना है। एक और रहता है विच इज़ दिस वन, ये वाला आपने फाइंड करना है, बेस वाला। सो आपके ये सारे एरियाज हो गए। अच्छा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, इसके बैक साइड पे वो आपने फाइंड करना है। वो हो जाए तो फिर आपने ये फाइंड करना है। इसके उस साइड पे एक दूसरा एरिया है, वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद आपने ये टॉप वाला एरिया फाइंड करना है। टॉप वाले एरिया फाइंड करने के बाद आपने बेस वाला एरिया फाइंड करना है, और इन सारे एरियाज को फिर आपने ऐड अप करना है, यू विल गेट दी सरफेस एरिया। ओके यहाँ पे देख लो, ये एग्जांपल भी इन्होंने गिवन है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस एग्जांपल को कर लो आफ्टर दिस क्लास। ओके ओके अच्छा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.4। Again, sir. yes Sir, yes sir, you never sent the book, I send you the book the pages of the book. I last didn't get it. I never got it. नो लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंड किया था, और आपको लिंक भी मिल गया था, आपने डाउनलोड भी किया था बुक को। What is it a link? Wait, let me just see. Okay, never mind. I got it now. I see it now. यस, आपके पास ये बुक फिजिकल में नहीं है? है but बस वैसे ही। अच्छा, okay, so question exercise 15.4, question number 1, work out the volume of each prism. Okay, these prisms are given to you. Okay, you need to find the volume. अच्छा, इसको हम प्रिज्म क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लो। प्रिज्म आपका थ्रू आउट दी वो स्मूथ होगा। ओके, यहाँ पे देख लो, ये आपका जो ये एरिया है वो यहाँ पे भी है, इस साइड पे भी है। कुछ शेप आपके होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं। फ्रंट साइड आपका इस तरह होगा और बैक साइड आपका कुछ इस तरह का होता है। Sir, जी sir, sir, यस sir. यस यस Sir, can you please make class shorter? I need to go. क्यों, कहाँ जाना है आपने? I have to go to dinner to the other house, डिनर नहीं and किया? I have a problem. I can't eat late, यू हैव so अ like I can't प्रॉब्लम? have dinner now. Yeah. क्यों, आपका मुंह बंद हो जाते हैं लेट नाइट पे, लॉक हो जाता है? No, I have a problem with acidity reflux. अच्छा, ओके, आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल एंड अप द क्लास। अच्छा, कुछ शेप्स इस तरह होते हैं जिसका Okay. फ्रंट साइड कुछ कोन की तरह होगा। ओके ओके, सो
दिस इज नॉट द प्रिज्म. ओके, प्रिज्म में आपका क्या होगा, थ्रू आउट दी शेप आपका सेम होगा. सर मामा कह रहे हैं कि आप इसको वो असाइनमेंट पे भेज दें ये काम और इसको छुट्टी दे दें. ओके ओके सुमैया, टुमारो वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. ओके, Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.